Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Now today we'll discuss some important concept of holding company with respect to bonus issue. Now अगर मैं last class कार्तिक recall करूं, bonus issue का crux था bonus issue whether you give out of pre-acquisition profit or you give out of post-acquisition profit, it is only taken into account while calculating the cost of control. It is only taken into account while calculating the cost of control. All right. Now, illustration 17. Question says, prepare the consolidated balance sheet. Okay. Balance sheet says we have acquired how many shares? 3200 shares. जल्दी मत करना बच्चा पार्टी, आज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कुछ बातें बताना. Week Limited made a bonus issue on 31st March. Effect not yet given in the accounts. Meaning thereby, Week Limited ने बोनस इश्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है. वीक लिमिटेड ने बोनस इश्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है. ओके. वी हैव एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन वीक लिमिटेड costing rupees 6,80,000. And how many shares we have acquired? It was given on the top, 3,200 shares. Now, what is the total share capital of Week Limited? 4 lakh upon 100, which is 4,000. पेपर में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है. Second thing which comes to my mind is, हमने कंट्रोल कब एक्वायर किया? हमने कंट्रोल कब एक्वायर किया? मार्च 20. द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट. इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट डेट क्या है? 31st मार्च 20. हमारा कंट्रोल भी कब एक्वायर हुआ? 31st मार्च 20. और इस क्वेश्चन में कुछ भी पोस्ट नहीं आएगा because any profit earned till the date of acquisition are considered as pre-acquisition profit. So all my profits now will be recorded under the head pre-acquisition profits. Now the journal reserve is 3,40,000 and P&L is 72,000. Next point says nothing. अगर हम प्रॉफिट से रिलेटेड बात करें बच्चों, बोनस इश्यू, इसके बारे में बात करते हैं. बोनस इश्यू इज 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. सो कैन आई से बोनस इश्यू 1 share for every 4 shares held. So how many bonus shares? 1,000 bonus shares. Face value of bonus shares, 1,000 shares of 100 each, 1 lakh. And bonus issue will reduce my profits. Bonus issue will reduce my profits क्योंकि bonus shares are issued out of past accumulated profits of the company. Okay. Then comes the director have decided to revalue the land and building and plant and machinery at 4 lakh and 298 respectively. Land and building old value was 3,60,000. So there is a, see, everything is free, कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है. Profit on land and building
40,000 because 360 worth is valued at 4 lakh. And in case of plant and machinery, we have a loss of 20,000. So loss on plant and machinery. So net profit on revaluation. All right. Sundry creditor include something to do with consolidated balance sheet. Creditor and debtor is a part of common debt, so not a part of cost of control. I think all my question is done. Before I go further, I will divide it in the ratio of 4:1. Sir, why 4:1? Because total shares कितने थे बच्चों? 4,000 shares. होल्डिंग के पास कोलस्ट्रॉन्ग लिमिटेड 3,200, वीक लिमिटेड 800, 4:1. कार्तिक जरा करो मेरे लिए एक बार. यस सर. मतलब क्रॉस चेक कर लेना अगर मैं गलत कर रहा हूं तो. कोई डाउट कार्तिक यहां तक? ओ सर. Cost of control. How much is the gross cost of investment, guys? 6,80,000 minus paid up share capital. I hold 3,200 shares of 100 each. और bonus issue को भी guys, where should I subtract? Here only. Where should I subtract bonus issue? Here only. That is what we have discussed in the last class. Because bonus issue is done out of past accumulated profits of the company. Then last but not the least, pre-acquisition profits. General reserve कितना? Profit and loss कितना? जनरल रिजर्व कितना? प्रॉफिट. और एक चीज मैं खा गया, सॉरी, अभी टोटल नहीं करना चाहिए. कार्तिक मेरी हेल्प करना अभी. General reserve, P&L, and we also have net profit or loss on reval. कितना है पता टोटल? एक मिनट. 269,600 और 265,600 आ रहा होगा. देखो गुडविल आ रही है एक बार बुक में बच्चों 14,400. Guys, check in the book whether the goodwill is coming as 14,400. Yes, sir. Okay, so that will go under intangible assets. बच्चों मेरी टैली हो गया ये. Okay, then comes minority interest. How much is the paid up share capital? I have 800 shares of rupees 100 each as a minority. How much is the bonus issue? Now let's add pre-acquisition profits. Let's add
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। मेरे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने हैं सर? जर्नल रिजर्व 48,000, P&L 14,400। और इस क्वेश्चन में सर पोस्ट तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ और है? हाँ सर, प्रॉफिट ऑन रीवैल 4,000। I think that is it. 20, 4, 24 और 14, 8, 38। मैं 20,000 कौन सा खा गया? अच्छा वो तो उसमें चला गया। ओके, एक बार जरा देखो कि आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है फंड 66,600। तो 166,400 है। सॉरी 166,400, मेरा मैथ्स ठीक है बेटा, ये रख, ठीक कह रही हो। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 166,400, जो आप अपनी बैलेंस शीट में ये दिखा दोगे बच्चों, 166,400। उसके बाद अब मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट से डिस्कस करता जाऊंगा, बिकॉज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ओवर। बिफोर आई गो फर्दर, वापस मैंने एक चीज याद की, 1, 2 बकल माई इश्यू, इनसे मुझे कुछ भी लेना देना, सॉरी गलत तरफ काट दिया। इधर देखो बच्चों, 1 and 2 ये कहीं पे भी यूज, एंड नंबर 3 कॉल्ड, जो भी चीज आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ले चुके हो उसको आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सेपरेटली नहीं दिखाना। सो फार सो गुड? यस सर। ऑलराइट, आज मैं नोट्स टू अकाउंट बेटा सारे बना देता हूँ इस क्वेश्चन के, बस आप बैलेंस शीट में चेक करते रहना ताकि कुछ गड़बड़ ना रह जाए। आई विल जस्ट मेक नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग। मेरा अपना कितना है बच्चों? 3 लाख। बाजू वाले का कितना था? 360। उसमें एप्रिसिएशन कितना हुआ? 40। और उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ एनी 0। ओके, जल्दी मत करना बेटा। देन कम्स प्लांट एंड मशीनरी। मेरा अपना कितना? 480। बाजू वाले का कितना? 298,800। और इस पे भी कोई एडिशनल, सर 298,800 क्यों? बिकॉज इट इज रीवैल्यूड एट दैट। एक बच्चा कहता है सर ऐसे लिख दो ना, मैंने कहा कैसे? कहता है सर बाजू वाले का कितना? मैंने कहा 318,800, 798,800। सर वैल्यू कितने से कम हुआ? 20,000। तो बेटा बात तो सेम है। तो the total tangible asset to be shown in the new balance sheet, the total tangible asset to be shown in the new balance sheet now comes out to 1478,800. दिख रहा है कार्तिक? Oh yes sir. Okay, now comes current asset side, stock। जल्दी नहीं करेंगे। स्टॉक, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, वीक लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग का कितना? 240। वीक का कितना? 72। टोटल कितना? 3,12,000। और इस क्वेश्चन में स्टॉक के अगेंस्ट कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। देन कम्स डेटर। डेटर्स, मेरा अपना कितना? 88,000। बाजू वाले का कितना? एंड कॉमन डेट कितना? 24,000। क्योंकि अगर स्टॉक, सॉरी क्रेडिटर स्ट्रॉन्ग का क्रेडिटर है तो वही सेम अमाउंट वीक का डेटर है, तो कॉमन डेट इज 24,000
as far as debtor and creditor is concerned. Then comes bill receivable, जो आपकी बुक किसके अंडर दिखाती है पुत्र? Short term loans and advances. थैंक यू। अब जल्दी मत करना बेटा। बिल रिसीवेबल जल्दी मत करना। स्ट्रॉन्ग का कितना? 31,600। अभी अंदर का मत पढ़ो। वीक का कितना? 0। सिमिलरली अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग देखूं, ब्रैकेट कहता है 6,000 बिल्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वीक लिमिटेड, यानी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने वीक लिमिटेड पे कितने बिल ड्रॉ किए? 6,000. सॉरी पुत्र, So I guess 8,000 है, जिसमें से 2,000 इन लोगों ने वो करा दिया डिस्काउंट. अच्छा तो 6,000 उसने ड्रॉ किया, बट वो क्या कहता है? मैंने तो बिल कितने के इश्यू किए थे स्ट्रॉन्ग को? 8। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 2,000 रुपए के बिल मार्केट में बैंक से डिस्काउंट करवा चुका है। So that is why the common debt left is 8,000 or 6,000, whichever is, बोलो कार्तिक, whichever is lower. ये हमारा शॉर्टकट है अगर पेपर में दिमाग लगाने का मन ना हो तो। Then comes cash at bank, वो आप मैं बना ही देता हूँ, चलो अब लिख रहा हूँ। Then comes the liability side. अच्छा, नोट्स टू अकाउंट में बच्चों गुडविल इंटेंजिबल एसेट में आप अपने आप लिख ही लोगे, मैंने बात कर ली थी। आते हैं अब नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के जर्नल रिजर्व अपने कितने? 480, और इस बार कुछ भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं, तो वीक में शेयर 0। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस, एस लिमिटेड का कितना? 1,14,400 प्लस सब्सिडरी में शेयर कितना? अगेन इस क्वेश्चन में कुछ भी आपका पोस्ट एक्विजिशन नहीं था, पूरे का पूरा प्री था। बैंक लोन का वर्किंग नोट मैं नहीं बना रहा, 160 + 0 आप बैलेंस शीट में 160 दिखा दोगे। साथ साथ नोट्स टू अकाउंट देखते रहना कार्तिक, अगर मेरा कुछ स्किप हो जाए या गलत बोलूं तो क्रॉस चेक हो जाएगा। नाउ बिल्स पेबल, स्ट्रॉन्ग 0, वीक 16,800, बट इसमें कॉमन डेट कितना? 8 या 6? 6. 6,000. Because whichever is lower. Lower. And simultaneously common debt on account of creditor कितना? 24,000। मैंने यहीं पे बना दिया creditor strong weak 94,400, 18,000, और उसमें से माइनस कर दिया कॉमन डेट। आई थिंक मैंने सारी फिगर्स आपको बैलेंस शीट की लिख के बता दी, सारी फिगर्स बैलेंस शीट की लिख के बता दी। लॉक कर दो? Yes. यहां तक कोई डाउट? No. हमने पहला क्वेश्चन आज बोनस इश्यू पे स्टार्ट किया, वेयर द बोनस शेयर्स वर इश्यूड आउट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स
being pre-acquisition profits of the company. Correct? Yes, sir. Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. ओके, चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे। एक मिनट बच्चा बात है। ओके, now let's talk about illustration 18. Now when we talk about illustration 18, my first question is whether the bonus shares are issued out of, बोलो बेटा, whether the bonus shares are issued out of pre-acquisition profits or the bonus shares are issued out of post-acquisition profit, they are only taken into account while calculating the cost of control. रॉबर्ट, लास्ट क्वेश्चन में हमने उसमें भी तो यूज किया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बोनस इश्यू को ऐड तो किया था। हाँ, तो होल्डिंग का शेयर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में जाएगा। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कह रहा हूँ, इट मींस जो चीज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगी उसका प्रोपोर्शनेट शेयर माइनॉरिटी में भी तो आएगा। यस, अनलेस एंड अनटिल होल्डिंग ने कोई रेक्टिफिकेशन कर रखा है, वो सिर्फ होल्डिंग में आएगा। रेक्टिफिकेशन मींस गलती कर रखी है, रेक्टिफिकेशन मींस गलती कर रखी है, रेक्टिफिकेशन मींस गलती कर रखी है। राहुल भैया को फोन कर दो बेटा, मैं क्लास में हूँ। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। Okay, now you are required to prepare the consolidated balance sheet. We have invested in 1200 equity shares in S Limited. We have invested in 1200 equity shares in S Limited. Okay, कौन सी डेट पे इन्वेस्ट किया? 1 अप्रैल 19। बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? मार्च 20। इट मींस करंट ईयर के सारे प्रॉफिट Post acquisition. Thank you very much. Since the date of acquisition is 1st April 19, it means the profit earned in the current financial year, which is from 1st April 19 to 31st March 20, only represents the post acquisition profits. All right. Now, before, अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूं, जब मैं एग्जाम में बैठूंगा मैं डायरेक्टली होल्डिंग माइनॉरिटी की रेशियो नहीं निकालूंगा। मेरी इस छोटी सी बात पे ध्यान देना बच्चों, मैं डायरेक्टली होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा पुत्र? फॉर द वेरी वेरी सिंपल रीजन, दैट मुझे नहीं पता कि मैंने कंट्रोल एक्वायर किया है बोनस शेयर्स इश्यू होने से पहले या बोनस शेयर्स इश्यू होने के बाद। मैंने अगर कंट्रोल एक्वायर किया था बोनस इश्यू से पहले, तो मुझे होल्डिंग और माइनॉरिटी की शेयर कैपिटल में रेशियो भी बोनस इश्यू से पहले वाले शेयर्स में निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली, अगर मैंने कंट्रोल एक्वायर किया बोनस इश्यू के बाद, तो मुझे उस शेयर कैपिटल में रेशियो निकालनी पड़ेगी जो बोनस इश्यू होने के बाद है। That is the reason now I first want to read a point which is bonus issue. Now when I look at this question, it says S Limited made a bonus issue during the year.
अगर ये वर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं लिखा होता तो इसका मतलब हम मान के चलते ड्यूरिंग द ईयर किए, कौन से प्रॉफिट से किए, करंट ईयर प्रॉफिट से किए, बट अभी उसने इनडायरेक्टली बोल दिया वी हैव डन इट आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ना हाँ जी बेटा, अगर प्री एक्विजिशन नहीं लिखा होता तो फिर हम पोस्ट से माइनस करते क्या? अगर मैं करंट ईयर में बोनस, यस पोस्ट से माइनस करते, अगर ओके मैं करंट ईयर में बोनस शेयर इश्यू कर रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा वो मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट से दिए। ओके सर। Okay. Now, on 1st April 90, the surplus stood at the journal reserve stood at also H Limited revalued its plant and machinery of S Limited at the time of purchase of shares by 20,000 more than the book value. Meaning thereby profit on revaluation. Now my next question is, आपको इस क्वेश्चन में जज करना है, आपको इस क्वेश्चन में जज करना है क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा बेटा, कि ये जो हमने बोनस इशू किया क्या वो अभी तक रिकॉर्ड हुआ। आई रिपीट, जैसे अगर हम पिछले क्वेश्चन पे चले बच्चों, वहां लिखा था इफेक्ट नॉट गिवन इन द अकाउंट्स फॉर दिस। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो बताओ बच्चों मैं क्या एज्यूम करूं। सो लास्ट में लिखा तो है कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, थैंक यू, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट अगर ये नहीं लिखा होता पुत्र तो मैं उसको सिखाऊंगा एक क्वेश्चन में कैसे क्रॉस चेक करता। नाउ एस लिमिटेड मेड ए बोनस इश्यू नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। प्लीज मेरी बात बड़े प्यार से सुनो। अब जो मैं नेक्स्ट 5 मिनट बोलने जा रहा हूं, कार्तिक, सुयश, रिदिम और माय एसआर के, ध्यान देना, नहीं समझ आए तो रोक लेना। आई हैव अनदर वे टू एक्सप्लेन इट। आई एम फर्स्ट गोइंग विद माय प्लान ए टू एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन कहता है हमने बोनस इश्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, तो हमने जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई तब तक भी रिकॉर्ड, बेटा जवाब देना, नहीं करा। नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर कर दिया होता तो क्या वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखता कि नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो इंफॉर्मेशन में लिखने का मतलब नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स मींस कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर के प्रॉफिट ऐड किए और आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। आपने इस बोनस इश्यू को कंसिडर नहीं करा। Thank you. Why I was talking so much, I'll just explain. General reserve closing balance है 6,000, तो मैंने लिखा जनरल रिजर्व पोस्ट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सिमिलरली सरप्लस क्लोजिंग माइनस, बोलो बेटा क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहां तक कोई डाउट? बोलो। और मेरे को है, हाँ बोलो। तो मेरे को लग रहा है कि सिंस बोनस इशू रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ तो हमें करंट ईयर सरप्लस निकालने के टाइम पे 60,000 माइनस करना चाहिए। रुक जाओ, आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपको समझाता हूं आप क्या गलती कर रही हो।
क्योंकि आपने वो गंदी बात की है। इधर आ जाओ। सरप्लस फॉर ए बिजनेस इज, ये मैं मिटा दूंगा बच्चों बाद में, चाहे बेशक आपको बनाना हो बना लेना। सरप्लस फॉर ए बिजनेस इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस। यस सर। क्या आपने अभी तक जनरल रिजर्व टू बोनस इश्यू की एंट्री पास की है? नहीं करी। आप बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना, कैसे निकालोगी? सर लेकिन फिर हमें रेक्टिफाई तो करना है। लेकिन नहीं ना यार, देख पीयूटी पट थोड़ी होता है, पीयूटी बट होता है तो पीयूटी पट तो नहीं होता ना, ऐसे पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट तो नहीं होता ना। मुझे मेरी बात का जवाब दो पहले। हाँ यहाँ पे तो ऐसे होगा। यहाँ पे क्या, दिस इज व्हाट द कंपनी हैज डन एक्चुअली। आपको समझ नहीं आता, जल्दी जल्दी में सारे बच्चे जो गलती करते हैं। बेटा आपका ओपनिंग बैलेंस है, इधर सुनना आप जरा ध्यान से कार्तिक, ओपनिंग इतना, करंट ईयर का प्रॉफिट आया इतना, तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना? राइट मेरा कार्तिक? यस सर। इसी का तो मतलब है कि आपने बोनस इश्यू रिकॉर्ड नहीं किया। आपने उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करी। इसका मतलब अगर ये नहीं दे रखा तो इसको बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालूं? सिंपली जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और जो मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उनका डिफरेंस। यस रिदिम। गॉट इट सर। कार्तिक, सुयश, नाउ माय लास्ट पॉइंट, इसको अब मैं हटा रहा हूं। आप जब जब अटकोगे मैं ये अकाउंट बना दूंगा पुत्र। कार्तिक, यस सर। भूल भुलैया 2 कैसी चल रही है यार तेरी? देखी नहीं मैंने अभी तक। देखी नहीं? ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू माय कार्तिक इज, कार्तिक लेकिन बोनस इश्यू हुआ तो है? यस सर हुआ है। माँ बाप कहते हैं गलती, बता रहा हूँ। तो चलना इधर माइनस बोनस इश्यू कितना? 60,000। रेक्टिफिकेशन, आज मैंने पढ़ाने का स्टाइल ही चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। पेंडेमिक के बाद बहुत सारी गलतियां और बढ़ गई हैं, सो आई एम लर्निंग टू चेंज फ्यू थिंग्स टू एक्सप्लेन। यस यस सुयश, कार्तिक, रिदिम, माय एसआर केस विदाउट। सर। तो इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हुआ बोनस वाले पॉइंट का? उसमें तो मेरे को बताना ही नहीं था, उसमें सब कुछ ही प्री था, हाँ इसलिए मैंने वहां ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। अब ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि पोस्ट बोले तो करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है। और बात ये हो रही थी जो रिदिम कह रही थी, रिदिम कह रही थी सर 1,08,000 माइनस 17,500 करो, यही कह रहा था ना मेरा बेटा? यस सर। गलत कह रहा था, आई प्रूव्ड इट। यस सर। यस यस सुयश, यस सर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। ना, भगवान हमारा भला करे। इसके अलावा प्रॉफिट का और कोई पॉइंट बचा नहीं। इधर देखो बेटा, स्टॉक प्रॉफिट समथिंग टू डू विद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, डेटर कॉमन डेट समथिंग टू डू विद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नाउ बोनस इश्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था और हमने कंट्रोल भी बोनस इश्यू से पहले किया था। इस बात पे ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना, हमने बोनस इश्यू भी कंट्रोल के बाद ही किया है। और हमें वो शेयर कैपिटल चाहिए जो बोनस इश्यू से मिला होगा हमें। नहीं मेरा बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूं बच्चों, क्योंकि पेपर में बोनस इश्यू की वाट लगती है। मेरा आपसे सवाल है, जब आपने 1 अप्रैल 19 को कंट्रोल एक्वायर किया, क्या उस समय तक बोनस इश्यू हो चुका था? नो सर। थैंक यू। इसका मतलब
हमने उस शेयर कैपिटल में कंट्रोल एक्वायर किया जिसमें बोनस इश्यू एडेड नहीं था। नहीं था। थैंक यू। हमारे पास जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 1,50,000 दे रखी है, इसमें भी अभी तक बोनस इश्यू ऐड नहीं है। नहीं है। नहीं है, और हमें इसी में तो रेशियो निकालनी है। यानी होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो है 4:1। कोई डाउट? कोई No, sir. डाउट? नाउ माय क्वेश्चन इज ओवर। करो जरा फटाफट। सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फेस वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स को भी किया था। यहाँ भी तो किया, ये फेस वैल्यू उसने खुद ही तो दे रखी है इस बार 60,000। मैं क्यों दिमाग लगाऊं बेटा? नहीं सर, जो फेस वैल्यू ऑफ बोनस शेयर हमने सीओसी और माइनॉरिटी में डिवाइड किया था, वो नहीं अरे करेंगे? वो करूंगा यार, अभी रुक जा, इतनी जल्दी क्या है? ओके। टेंशन ना ले, चिंता ता चिता चिता। ये श्रीदेव आप कुछ कह रही थी बेटा? नो सर, वो फेस वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स वाला था। हाँ वो तो मैंने आपको बताया बच्चों, फेस वैल्यू तो दे ही रखा है ना बेटा क्वेश्चन में। सर दे तो रखा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने हाँ वो मैंने, हाँ मैं समझ, ये लो मेरा बेटा, नाराज मत हो। बोनस इश्यू 60,000, होल्डिंग माइनॉरिटी, ये कह रही हो ना पुत्र? यस सर। बट मैं आपका ना पेपर में टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था, इन द सेंस जब मैंने यहाँ पे माइनस किया है तो मुझे उसका स्प्लिट तो बनाना ही बनाना है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में ही बना दूंगा आंसर रिप्रेजेंट करते वक्त बेटा। ओके सर। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम। देखो मैंने ये डिटेल्ड इसलिए बताया ताकि याद रहे पुत्र, बट आप पेपर में थोड़े शॉर्टकट भी तो मारोगे ना बच्चों, नहीं तो टाइम कैसे बचेगा? ना सबसे पहले करते हैं यहाँ पे कार्तिक, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, GCOI शॉर्ट में लिख दिया बेटा। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी पुत्र? सर 1,80,000। बड़े दिन हो गए कार्तिक, मैंने एक बात नहीं बोली बच्चों, कई बार एसेट साइड पे लिखा होगा P&L, दैट्स ऑलवेज, unless and until question says otherwise, fictitious asset are in the nature of accumulated Losses. losses। तो उसको आप क्या ट्रीट करोगे? Contingent liability. accumulated losses, and hence pre या post? Pre. Pre. It is always considered to be pre. It is always considered to be pre. Pre. Okay. Now मेरी बारी बेटा। सर हाँ जी बेटा। अगर व्हाट इफ एक एसेट्स में पीएनएल लिखा हो और ऊपर भी सरप्लस में लिखा हो? बेटा दोनों तरफ नहीं हो सकता पुत्र, ओके। that's next to impossible. Okay, paid up share capital, मेरे पास 1,200 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। बोनस इश्यू मेरे पास है 12,000 शेयर्स का, ये रहा बेटा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, सर यहाँ पे बोनस शेयर्स 48,000 नहीं आएगा? सॉरी माय बैड बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग, नहीं तो अभी मेरी बेइज्जती खराब हो जाती। माफ कर दो बेटा, होल्डिंग के वक्त तो होल्डिंग का शेयर लूंगा ना। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, सरप्लस 14,000, जनरल रिजर्व
2400. Profit on reval, 16,000. That's it. इसका टोटल मारना पत्थर कितना आया? 1 20 और 40, 160, 2,22,000. देखो इतना ही है बेटा. कार्तिक एक बार चेक करना बेटा मेरे लिए. यस सर कर लूँ. 2,22,000 है. यस ओके, अब चलते हैं आगे. भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक. सर 1 सेकंड दिखा दो. अभी दिखाऊंगा बेटा, 1 मिनट रुक जा. ओके. सुयश, मेरे एसेट साइड पे गुडविल नहीं है. नहीं है. लायबिलिटी साइड पे कैपिटल रिजर्व है. नहीं है. कहाँ है सर अभी हुआ ना. यार? वो तो हमने निकाला. मैं कह रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है बच्चा. अच्छा नहीं. नहीं. नाउ कैन आई से पुत्र, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक. 1 मिनट और दे देना बेटा, होल्ड करना जरा, जस्ट 1 सेकेंड. ये कहाँ पे था बेटा? रिदम. यस सर. मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, मैं ये समझा रहा था सुयश कि हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग रिजर्व या सरप्लस नहीं. नहीं है. इसका मतलब ये है मेरा बेटा, इधर देखो पुत्र. दिस विल नाउ गो टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस में. अदरवाइज एड ओल्ड बैलेंस शीट का कैपिटल रिजर्व जो अभी नहीं है, माइनस ओल्ड बैलेंस शीट का गुडविल, so that final result on account of goodwill or capital reserve is to be shown in the new balance sheet. ये बताने की कोशिश कर रहा था आज, धीरे धीरे आगे चल रहा है. एनी डाउट बच्चा पार्टी? सर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व 20,400 आया हुआ है. वो मेरी गलती में देख लेता हूँ बच्चों, मैंने गलती क्या की है, दैट आई विल सी. वो मैं देख लेता हूँ मेरा मैथ्स कहाँ पे गड़बड़ हुआ है या गलती कहाँ पे हुई है पुत्र, वो मैं देख लेता हूँ. बट इज दिस पॉइंट क्लियर पुत्र? यस सर. ओके. नाउ 1 सेकेंड में वीडियो पॉज कर रहा हूँ जस्ट टू फाइंड माई मिस्टेक. ऑलराइट गाइस, मेरी मिस्टेक क्या थी? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैंने टोटल गलत किया था और कार्तिक ने मेरी गलती नहीं पकड़ी थी. कार्तिक गंदी बात बेटा. ऑलराइट, इज दैट क्लियर कार्तिक? Yes. I was explaining कि मुझे जो भी मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है उसमें मुझे ओल्ड बैलेंस शीट वाला गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी ऐड या माइनस करना. Now let's come to minority interest. Now let's come to minority interest. Paid up share capital. मेरे पास 300 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच. मेरे पास बोनस इश्यू है 12,000 रुपीज. मेरे को प्री प्रॉफिट में हक मिला. सरप्लस में कितना? 3,500. जनरल रिजर्व में कितना? 600. प्रॉफिट ऑन रीवेल में कितना? 4,000, 8,100. सिमिलरली मुझे पोस्ट पाई का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होता है. जो भी बच्चे पहली बार मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जनरल रिजर्व होल्डिंग माइनॉरिटी 600 एंड सरप्लस 6,100. Is minority interest guys 56,800? Yes sir. So all about goodwill, cost of control and minority interest. जहां तक इस क्वेश्चन में बाकी पॉइंट्स की बात रही, मैं सारे नोट्स टू अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा. मोटे मोटे पॉइंट फटाफट से डिस्कस कर देता हूं एंड रेस्ट क्लास में
हम आपके साथ एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। तो जब आप बच्चे मेरी नेक्स्ट क्लास देखें उससे पहले इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो मैं आपके लिए गाना गा दूंगा। कौन सा? जो कबीर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाता था। कौन सा कार्तिक? याद नहीं सर। अबे क्या बात कर रहा है, तूने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं गाया? कैसे हुआ? याद आ गया? तो आपको नेक्स्ट क्लास तभी समझ आएगी अगर आप 17 और 18 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो आपको गाना गाना पड़ेगा इन दोनों क्वेश्चंस को देख के। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। एनीवेज, लेट्स मेक नोट्स टू अकाउंट मोटा मोटा। नाउ फटाफट से मैं और कार्तिक बात करेंगे। अब सिर्फ कार्तिक। यस सर। फर्स्ट 3 फिगर्स कट। यस सर कट। कॉमन डेट 24,000, डेटर क्रेडिटर वाला, यस सर। यानी 1 लाख। अब मैं गंदा गंदा कर रहा हूँ बच्चों। प्लस 44,150 माइनस 24 करके बैलेंस शीट में दिखाओगे। यस सर। सिमिलरली डेटर्स एंड कैश इकट्ठा दिखा रखा है, तो 2,12,000 प्लस 8,400 माइनस 24। यस सर। ओके, देन मेरा सवाल रिदम ये है छोटा सा। स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 8,000 ऑफ द स्टॉक फ्रॉम एस लिमिटेड। फर्दर, debtor of S Limited includes 24,000 on which S Limited made a profit of 6,000. मेरा आप लोगों से 1 मिनट का टारगेट दिया। मैं 1 मिनट पॉज रखूंगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इट्स ए रिक्वेस्ट, खुद से सॉल्व करें। मैं सामने खड़ा रहूंगा। बताइए इस पॉइंट में से 24 तो मेरा कॉमन डेट था, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितना आया? अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितना आया? सर 6,000 अपॉन 24,000 इंटू 8,000 हो गया। अरे वाह, मेरी लड़की बहुत स्मार्ट है। कहती सर वी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 6,000 ऑन 24,000 एंड आउट ऑफ दैट 20, वेरी गुड मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू। आउट ऑफ दैट 24,000, 8,000 गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक, so we have to calculate the unrealized profit only with respect to 8,000. So it comes out to मेरा बेटा 2,000. So आप जब स्टॉक की वैल्यू लिखोगे, दोनों स्टॉक्स को ऐड करने के बाद उसमें से कितना माइनस कर दोगे? 2,000। उसमें से कितना माइनस कर दोगे? बोलो बच्चों। 2000। 2,000। अब बस आखिरी पॉइंट आज का बताना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ लिख के बताना है रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी आप कर सकते हो, ऐड ऑन ही करना है। जहां प्रॉफिट ऑन रिवेल है वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। माय ओनली थिंग टू बी शोन इन द बैलेंस शीट बाय लिख के इज रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व हमारा कितना है? 3,40,000। एस लिमिटेड से हमें कितना मिला? इधर देखो बेटा, एस लिमिटेड से हमें कितना मिला? 2,400। सिमिलरली हमारा सरप्लस कितना है? 3,60,000। होल्डिंग कंपनी को एस लिमिटेड में कितना मिला? होल्डिंग कंपनी को एस लिमिटेड में कितना मिला? 24,400। टोटल कितना आया? Last but not the least, I repeat, last but not the least, unrealized profit कितना है? देखो क्या बैलेंस शीट में 724,800 दिया हुआ है बच्चों? तो 7,45,000।
मैंने क्या गड़बड़ कर दी? ये तो ठीक लिखा है। सर कैपिटल रिजर्व ऐड नहीं किया। ओ यस, ऐड कैपिटल रिजर्व, जल्दी जल्दी में भूल गया, मैंने लिखा था मतलब भूल गया, दैट इट गोज टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसके चक्कर में मैंने बनाया था, माफ कर देना बच्चों। 20,400, so total amount to be shown in the consolidated balance sheet under the head reserve and surplus is 745,200। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, मैंने जान के ये 2 क्वेश्चन एक साथ किए, रादर 2 के 3, कितने क्वेश्चन किए पुत्र हमने? 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 ही किए, बट प्लीज इसको अच्छे से समझना। और नेक्स्ट क्लास में देखो, कबीर सिंह नहीं बनना हमने, तो अगर कबीर सिंह नहीं बनना तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके आना। और ये जो मैंने बात डेवलप करने की रिदम कोशिश की, दैट बोनस इश्यू रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, उसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और उसके बेसिस पे मेरा पोस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत केयरफुल करनी होती है। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।